My dear IAS PCS aspirant, this is Dr. Anand Pradikshit. This one. I am here to tell you the truth about services and preparation. I am not a part of that 4-book NCERT gang, Nasrat gang, NCERT, Nasrat gang, or that 4 books gang which suggests 4 books only for being IAS. No, you cannot. There are 30 topics in preliminary syllabus, so 40 books are required. Please read syllabus and choose the books in which you get all the topics of pre and mains. Then you will find you need total 50 books and you have to study those books. You have to prepare notes, my lord, and you have to revise those notes and you have to study 10-year papers at least 3 years in the beginning and rest 7 years after that. Before preparing notes, please read 3 years pre and mains, UPPCS and UPSC, and if you are in another state, then the state PCS and UPSC exams, so that you come to know what comes in the examination. Hence, it will be very easy for you to prepare notes. Some unofficer in his uncoaching tells you that don't read these books like Mishra and Puri or Bipin Chandra or those moti books. No, he is totally telling a lie, totally giving false statements. He is simply interested in your unsuccess because he is unprofessor, because he is unofficer, because he teaches in an uncoaching. So, you will become unsuccessful. No, you cannot clear the examination, I can guarantee, by these 4 books or NCERT. Yes, you need to prepare full syllabus and some things which are not included in syllabus, but are asked because they want to check your intelligence and analytical power and your explanatory power and interpretation and your Verstehen. Verstehen means interpretative understanding. That is, how can you understand on the basis of your interpretatory understanding, means what is your power of understanding, perceiving, remembering, reproducing and thinking. Then comes analyzing and appraising. इतनी सारी बातें हैं जो मैं तमाम वीडियोस में बताता हूं और पेड क्लासेस में तो मैं भरमार कर देता हूं सब कुछ समझाने की. पेड क्लासेस हिंदी इंग्लिश दोनों में कंबाइंड चलते हैं. कुछ क्लासेस गोल्ड, प्लेटिनम और पब्लिक एड बैच के टोटल 1 सेंटेंस बाय 1 सेंटेंस हिंदी इंग्लिश दोनों बोले जाते हैं, सो दैट बोथ टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन राइट ईजिली. उनमें फ्लो इतना है कि आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे सामने पूरा क्लास बैठा हुआ था, तब वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन राइट. My dear student, I am going to tell you some interesting things of government service. सरकारी नौकरी के विषय में मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, जिनकी संख्या 50 से ज़्यादा होगी, लेकिन अब बहुत से वीडियो हिडन हैं, तो मैं कुछ बातें आपको बता दूं. ईमानदार अधिकारी के लिए सेवा करना बिल्कुल कठिन नहीं है. मैं किसी कठिनाई से भागकर, पलायनवादी होकर वहाँ से छोड़ के नहीं भागा हूँ कि सर पे पैर रख के भागा. आई वॉज यूपी टॉपर ऑफिसर. एक पुरस्कार होता है हर विभाग में, उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी, वो मुझे मिला जब मैं अलीगढ़ सेक्टर 1 में असिस्टेंट कमिश्नर इंचार्ज था. तो मुझे मिला पूरे उत्तर प्रदेश में, सिर्फ मुझे. 3 को मिलना था लेकिन 2 उन्हें नहीं मिले, सिर्फ मुझे मिला था. दैट वाज द ईयर आई थिंक 92 मोस्ट प्रोबेबली और 93. मैं 4 साल अलीगढ़ रहा, पता नहीं किस साल में मिला था. 3 साल में सेक्टर 1 का असिस्टेंट कमिश्नर था, 93, 92, 91.
In 94 I was on check post. So that it is very easy for an honest officer to continue in the department, because there are so many posts in every department जिन्हें लोग कहते हैं कि सूखी पोस्टिंग है, यानी घूस नहीं मिलती बेचारों को। ऐसी जगहों पर कौन रहेगा? ईमानदार अधिकारी, सो दैट यू कैन बी पोस्टेड देयर। बट दुर्भाग्यवश मुझे उन पोस्ट पर रखा गया जहां पर अगर लेने वाला होता तो करोड़ों कमाता। क्योंकि मेरे कमिश्नर का कहना यह था, प्रशांत कुमार जब थे तो उन्होंने मुझे कहा एक बार बुलाकर, जब उन्होंने मुझे काम दिया एसआईबी का, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का, जिसे एसटीएफ भी बाकी लोग समझते हैं, बाहर के लोग, स्पेशल टास्क फोर्स, ये एक जासूसी जैसी संस्था है, इसका कुछ काम मुझे सौंपा अलोंग विद माई सेक्टर एक्टिविटीज़। तो मैंने कहा सर मुझे 14 साल नहीं हुए नौकरी करते, नियम था कि 14 साल नहीं हुए तो एसआईबी में पोस्टिंग नहीं होगी। तो प्रशांत कुमार जी ने कहा कि मैं आपको एसआईबी में पोस्टिंग, मैं उनसे मिला पर्सनली कि सर ये क्यों हो गया। उन्होंने कहा मैं आपको एसआईबी में पोस्टिंग नहीं दे रहा क्योंकि ये नियम विरुद्ध है, 14 साल आपको नहीं हुए हैं, मैं आपको उसका काम सौंप रहा हूँ। आप रहेंगे सेक्टर इंचार्ज, जैसे इनकम टैक्स में वार्ड होता है, ऐसी सेल्स टैक्स में सेक्टर होता है जो कमर्शियल टैक्स कहलाता है। आप रहेंगे सेक्टर इंचार्ज, लेकिन आपको एडिशनल काम दे रहा हूँ क्योंकि आप कर सकते हैं और आपने बहुत अच्छा किया है आज तक जो किया। मुझे एसआईबी का काम करते हुए बहुत साल बीते। एडिशनली आई वॉज ऑन चेक पोस्ट बट आई वॉज वर्किंग फॉर एसआईबी, आई वॉज इन सेक्टर देन आई वॉज वर्किंग फॉर एसआईबी, इवन आई वॉज इन कंप्यूटर्स एंड आई वॉज इन कलेक्शन, आई वॉज स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, हाई कोर्ट वर्क्स और सुप्रीम कोर्ट वर्क्स। Still I was helping SIB because it is in my nature, investigation is in my nature. इसीलिए मैं पेड क्लास के उन बच्चों को तुरंत पकड़ लेता हूँ जो वीडियोस के साथ कुछ हेरा फेरी या छेड़छाड़ करते हैं, और ऐसे में उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है, उनका कोर्स बंद कर दिया जाता है विदाउट एनी रिफंड्स, क्योंकि ये शर्तें पहले से हैं कि आप बिजनेस के लिए मेरे वीडियोस को यूज़ नहीं करेंगे। और ये पता लगाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मैं टेक्स सेवी भी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट हूँ, बिना बीटेक किए, बीई किए। बहुत बड़ी रुचि है मेरी गैजेट्स में और सॉफ्टवेयर्स में और तमाम चीज़ों में। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी मुझे नहीं आती हैं तो मैं गूगल कर लेता हूँ या आप लोगों से पूछ लेता हूँ कभी कभी। जैसे मुझे वर्ड पे काम करना नहीं आता था तो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे सिखाया। एनीवे, ऑनेस्ट ऑफिसर्स को कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज डिपार्टमेंट लव्स ऑनेस्ट ऑफिसर्स। ये फिल्मों में होता है कि जो है माफिया आया, उसने एक तरफ बंदूक रख दी, एक तरफ 5 लाख रुपए रख दिए, जितने भी हुए, कि आप या तो रुपए ले लो या बंदूक की गोली ऑप्ट कर लो, मैं अभी आपको गोली मार के मोक्ष दिला देता हूँ। ऐसा नहीं होता। मेरे सामने ये होने की पूरी संभावना थी क्योंकि मैं उन पोस्टों पर नहीं रहा, और अगर रहा तो मैंने एसआईबी का काम भी साथ में किया जो मोस्ट डेंजरस काम है। माफिया से ही वास्ता पड़ता है। जैसे मैं पॉलिटिशियंस का अनुभव बताता हूं कि दे आर वेरी गुड पीपल, ऐसे ही मैं अगर ये कहूं कि माफिया भी वेरी गुड पीपल है तो थोड़ा अटपटा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन माफिया में एक विशेषता, माफिया जानते हो ना, अपराधियों का गैंग, उनके अंदर एक विशेषता ये होती है कि वो पहले सीधे किसी खून खराबे पे नहीं आते हैं, अपना रास्ता निकालते हैं दूसरी तरफ से। दीपावली को इतनी गिफ्टें लेके इतनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी थीं। जिस साल मैं ये ग्रेटर नोएडा और ये जो एक्सप्रेस हाईवे वाली चेक पोस्टों का इंचार्ज था, मैंने सबको बाहर निकल के हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा मैं किसी से गिफ्ट नहीं लूँगा, आप लोग यहाँ बैठिए। मैंने सीटिंग करवाई, मैं जानता था इतने लोग आएंगे। मैंने सीटिंग करवाई हुई है, 20 कुर्सियाँ बिछी हुई हैं, सफ़ेद चादरें बिछी हुई हैं और वो मेज़ लगी हुई है, उस पर नाश्ता रखा हुआ, आप लोग ड्राई फ्रूट्स लीजिए, चाय पीजिए, सब व्यवस्था है। मैं आपसे एक गिफ्ट भी नहीं लूँगा और आपसे और कोई ऑफ़र भी नहीं लूँगा। 2-4 तो लौट गए भुनभुनाते हुए, लेकिन बाकी लोग आए, बैठे, बातें की, हंसे बोले, हंसी मजाक, सारी बातें। ये सब इसी तरह की गिरोह के लोग थे, बहुत सारे लोग। उनमें से 2 लोगों ने तो, दूध माफिया जो था उसने तो मुझे मारने का भी प्रयास किया था अनजाने में। वो समझ रहे थे कि आरटीओ है, तो ये प्रयास कर रहे थे क्योंकि उस समय जो आरटीओ थे वो कुछ ज़्यादा तंग करते थे लोगों को और अनड्यू कुछ डिमांड्स थी उनकी शायद। अब अगर आप घूसखोरी भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं और अनड्यू डिमांड्स भी रखते हैं तो फिर लोग इरिटेट होंगे। एनीवे, मुझे उनके विभाग के लिए कुछ नहीं कहना है। तो उन्होंने
बैठे बैठे बोले कि ठीक है सर, हम अपना काम चाहे जैसे हो कहीं से भी करते रहेंगे, नहीं तो बंद रखेंगे, आपकी पोस्टिंग 8-10 महीने की है। हमने कहा हाँ, शनि ग्रह का प्रभाव समझ के आप निकाल लेंगे कि भैया शनि की ढैया चल रही है 8-10 महीने। हंसने लगे, बोले नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आप जैसे लोग कम होते हैं, लेकिन आपकी पोस्टिंग यहाँ क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आया। आपके लिए तो कंप्यूटर है, SIB है, कलेक्शन है, SR है, ये सब पोस्ट होती हैं। तो मैंने कहा पता नहीं, हेडक्वार्टर मुझे रखता ही नहीं है, क्योंकि मैं रेवेन्यू इतना कलेक्ट करता हूँ कि उन्हें लालच है कि मैं पोस्टेड रहूँगा तो सोना उगलता रहूँगा डिपार्टमेंट के लिए। यही मैं करता था, नहीं करना चाहिए था। इतना सोना भी ना उगलो कि मेरे देश की धरती सोना सोना उगले, तो फिर जो है वो डिपार्टमेंट ही जो है आपको इतना प्यार करने लगे कि फिर आपकी जान आफत में पड़ जाए। बहुत काम लेते थे मुझसे, बहुत ज़्यादा। मैं थक जाता था, मुझे बीमारी हो गई, डायबिटीज़, शुगर, वो क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, सब हो गया मेहनत से और थैंकलेसनेस से। डिपार्टमेंट काम खूब लेता है, थैंक्स नहीं। सर्वोत्तम अधिकारी तो पता नहीं कैसे एक बार पुरस्कार दे दिया उन्होंने, नहीं तो एक थैंक्स भी नहीं मिलता डिपार्टमेंट से कि आपने इतना अच्छा काम किया। आपको सरकारी नौकरी में रहकर कर्मण्यवादी कारस्ते सीखना होगा कि काम करते जाओ, फल की आशा मत करो। एक बार मैं बड़े खुश होकर बॉस के पास पहुंचा, मैंने कहा सर आज तो बहुत अच्छी उपलब्धि। बोले तो तनख्वाह किसकी मिलती, इसी काम के लिए तो मिलती। मैंने कहा नहीं सर, दूसरे लोग तो नहीं करते। ठीक है, नहीं करते हैं तो उन्हें डांटा जाता है, आपको डांटा नहीं जाता, यही बहुत। तो मुझे रामायण की एक चौपाई याद आ गई, रामचरितमानस की, यही हमार भले बड़ी सिबकाई, लय न भूषण भषण चुराई। मेरे ख्याल से उसमें आता है सुंदरकांड में, किष्किंधा कांड में, भूल गया, कि वानर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी यही सेवकाई है, हमारी सेवा यही है कि हमने आपके जो आभूषण, गहने, कपड़े नहीं लूट लिए, वरना तो हम तो वानर ठहरे, छीन ले जाते। डिपार्टमेंट यही कहता है कि मैंने आपके कपड़े नहीं उतार लिए, यही बहुत बड़ी बात है, नंगा करके जंगल में नहीं छोड़ दिया, यानी आपको तंग नहीं किया, आपकी नौकरी नहीं ले ली, आपको वार्निंग नहीं दी, आपको सज़ा नहीं दी, यही बहुत बड़ी बात है। यही कहाँ का काम है भाई? पुरस्कार चाहिए तुम्हें? किस बात का पुरस्कार? नौकरी किसकी करते हो? आप जान निकाल के रख दीजिए, दिल चीज़ क्या है, आप मेरी जान लीजिए। वो कहेंगे इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, आना तो यहीं पड़ेगा। मुसाफिर जाएगा कहाँ है, वहाँ कौन है तेरा। डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। एक बार 4000 पुरस्कार भी मिला था नकद, सन 88 में, 88 में। कुछ माल पकड़ा था, उसका परसेंटेज 40%, वो मुझे पुरस्कार भी दिया गया था। 10,000 जुर्माना जमा हुआ था, तो 4000 पुरस्कार भी मिल गया था। फिर सरकार को लगा कि बड़ा गड़बड़ है, ये लोग तो बहुत माल पकड़ते हैं, सरकार कंगाल हो जाएगी, तो फिर एक घड़ी देना शुरू कर दिया। तो लोगों के पास उस ज़माने में 88, 89, 90, 3 साल, 88, 89, 90, आजकल लोग हिंदी की वही नहीं समझते संख्याएं, तो इसमें लोगों घर में दीवाल घड़ियाँ भर गईं। तब दीवाल घड़ी 10 रुपए की आती थी, तो दीवाल घड़ियाँ बहुत सारी लोगों के पास इकट्ठी हो गई, पूरे वो घंटा घर बने हुए घूम रहे हैं। पुरस्कार इतने मिले कि दीवाल घड़ियाँ। लोग नाते रिश्तेदारों को दे देते थे, और नाते रिश्तेदार भी पक गए। अगर रिश्तेदार को देखें कि सेल्स टैक्स में अफसर है, वो कहें भैया घड़ी नहीं चाहिए। हाँ, एक बार जब इलेक्शन कराया था मुरादाबाद में, जब इलेक्शन इंचार्ज था, तो डीएम ने रिस्ट वॉच दी थी, और वो भी उस ज़माने में HMT की ऑटोमेटिक, बहुत महंगी और बहुत अच्छी घड़ियाँ दी थी। वो घड़ी आज तक चल रही। डीएम ने पुरस्कार के स्वरूप सभी अधिकारियों को, जितने लोगों ने ड्यूटी की थी, मैंने ड्यूटी नहीं की थी, मैं ट्रेजरी अफसर था, मैं तो उन सब का बॉस था। क्योंकि वो लोग जो मतपेटियाँ लाते थे, तो जो मतपेटियाँ रखी जाती थी पहले ट्रेजरी में रखी जाती थी, फिर मतगणना होती थी, तो कोषागार खुला दिन रात रखना पड़ता था, और उसमें रखने का इंचार्ज मैं ही था। तो इलेक्शन में मेरा योगदान बहुत बड़ा था डीएम के बाद, लेकिन मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट नहीं था। जब मैं सेल्स टैक्स में आ गया असिस्टेंट कमिश्नर, तब मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट बनता था, फिर जोनल मजिस्ट्रेट बनने लगा, बाद में सुपर जोनल ADM वगैरह बनते हैं। डीएम जो होते हैं वो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, जिन्हें चीफ रिटर्निंग ऑफिसर भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी कहते हैं, ये उनका पदनाम होता है। मैं ARO भी रहा, तो पंचायती राज के चुनाव में असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, यानी डीएम के डायरेक्ट अंडर में रिटर्निंग ऑफिसर,
उसको रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, अजीब सा नाम है ना, लौटाने वाला अधिकारी, भाग जाओ भाग जाओ। ऐसे ही सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स में रिटर्न भरे जाते हैं, कोई सेंस नहीं है इन नामों का, चले आ रहे हैं, ज़बरदस्ती सेंस निकालो तो निकल ही आएगा, लेकिन है नहीं कोई सेंस इनका, अंग्रेजों ने रख दिया। अब हम लोग अपनी बुद्धि नहीं लगाते कि यार रिटर्न किस बात का मतलब है, ये स्टेटमेंट है, इट इज़ स्टेटमेंट ऑफ सेल्स, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, इनकम टैक्स का रिटर्न, बिक्री कर का रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ सेल्स, सीधे शब्द न रख के रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स क्या होता है, बच्चे समझ नहीं पाते कई बार जब पढ़ने चलते हैं कि रिटर्न क्यों है इसका नाम, अजीब नाम है भाई। चलिए इन बातों पर फिर कभी चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट जॉब इज़ एक्चुअली वेरी इजी, यस, बट वेरी लेबोरियस। You should not expect anything from the government, but you should do everything for the government. आपको रेपो बनाए रखना है, रेपो स्टेट बैंक, वो आरबीआई वाला नहीं, रेपॉर्ट बनाए रखना है, यानी राव रस्म बनाए रखनी है, दुआ सलाम बनाए रखनी है, बॉसेस से यूं ही मिलना है। मुझे कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, लोग बॉस के घर जाते हैं, सर आपसे मिलने आए थे, भाई कोई काम है क्या, नहीं सर बस ऐसे ही आपके दर्शन करने चले आए थे। हमारे विभाग में सबसे ज़्यादा दर्शनीय बॉस होता है, सर आपके दर्शन करने आए थे। बॉस से हमेशा ये कहा जाता है आशीर्वाद चाहिए सर आपका, आशीर्वाद है। मुझे बॉस की कल्पना होती है जैसे भगवान विष्णु हो, एकदम सर्प के ऊपर लेटे, नागराज के ऊपर लेटे हो, हालांकि वो बॉस खुद ही नागराज होते हैं, ज़्यादातर फुफकारते रहते हैं पर, लेकिन हमारी कल्पना ये होती है जब लोग ये भाषा बोलते हैं, सर आपकी कृपा चाहिए सर आपका आशीर्वाद चाहिए, हमारे मुंह से ऐसे निकले ही नहीं कभी, हमें हंसी आ जाती है, ये आशीर्वाद देगा ये आशीर्वाद देगा। मैं नहीं कभी कह पाया ये बात कि सर आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हाँ ऐसे बोलते हैं लोग, बस सर आपकी चरणों कृपा है सर, बस सर ठीक। मिठाई लेके पहुंचे बॉस के घर, 5 किलो मिठाई, 10 किलो अंगूर, फलाना ढिमाका सब लेके पहुंचे। बॉस ने कहा भाई क्या बात है, आज तो बड़े लदे फदे चले आ रहे हो, सब बेटा हुआ है, अरे भाई बहुत बधाई, सब आपकी कृपा है सर। अब बताओ, बॉस की कृपा से बेटा हो रहा, अपन खुद कुछ कर ही नहीं सकते, गली में हकीम जी से इलाज कराते फिर रहे, बॉस की कृपा से बेटा हो रहा। मजे लो आराम से, सरकारी नौकरी करने में क्या है। मुझे बॉस के यहाँ बैठे बैठे हंसी आती थी अंदर, मुझे दबाना मुश्किल पड़ जाता, मैं बाथरूम भागता था जब लोग ऐसे चमचमते हैं सर, ऐसे ऐसे हिलते थे पेंडुलम की तरह। मुझे लगता था ये आदमी हिल क्यों रहा है, मिर्गी के दौरा पड़ गया क्या, अरे बॉस ही तो है, खा जाएगा क्या। तो मैं हमेशा बॉसों की आंख में खटकता रहा, क्योंकि मैं सीधे बैठने वाला, तन के बैठने वाला, टाई वाई लगा के पहुंचने वाला, बढ़िया सूट वूट पहन के पहुंचने वाला। लोग दीन दरिद्र बन के पहुंचते हैं एकदम भोगे से, बिल्कुल, जिससे कहीं ये ना लगे कमाई हो रही है बहुत ज़्यादा। इतने दीनहीन चेहरे, इतने घृणित चेहरे लेके पहुंचते हैं। एक मेरे बॉस कहते थे, एडिशनल कमिश्नर, कि यार दीक्षित क्या है तुम्हारे साथी ऐसे हैं, ऐसे आते हैं कि उनके चेहरे पे लिखा होता है कि सर मुझे डांटो ना, सर मुझे डांटो प्लीज़, सर मुझे मारिए, सर मुझे जूते मारिए सर। यार कैसे तुम्हारे साथी हैं, तुम तो नहीं हो ऐसे। वो चूँकि मेरे बहुत अपने थे और बहुत करीब थे, बहुत भले आदमी थे, ऐसे भले आदमी कम ही मिलते विभाग में, तो उन्हें मेरे जैसे लोग पसंद थे कि जो नॉर्मल रहते हैं, ज़बरदस्ती की मक्खनबाजी नहीं करते हैं। उन्हें मक्खनबाजों से बहुत चिढ़ थी। कहते यार दिखाई दे रहा है कितना नकली आदमी है, कितना फेक आदमी है, कितना झूठ बोल रहा है। अजीब सी बात होती। कौन से मणि त्रिपाठी थे, जैसे अमर मणि त्रिपाठी का नाम आपने सुना होगा, एक खास एरिया है शायद गोरखपुर का है, जो भी है, वहाँ कुछ त्रिपाठी खानदान है, वो मणि त्रिपाठी करके लिखते हैं। तो एक बृहस्पति मणि त्रिपाठी, याद आ गया नाम, वो मेरे डीसी थे, अब आजकल उन्हें एडिशनल कमिश्नर कहते हैं, कानपुर एसआईबी में। वहाँ आईपीएस होते हैं डीसी, कानपुर एसआईबी में, तो आईपीएस थे।
उन्हें भी बड़ी चिढ़ लगती थी इतना पैर वैर छूने से। पुलिस में भी ये पैर छुआई इतनी नहीं होती मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता ज़्यादा, लेकिन वो खुद कहते थे उन्हें बहुत चिढ़ लगती थी। लेकिन उसके बाद एक शुक्ला जी आए, वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे जहाँ मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर था, मुझसे पहले ही वो निकल लिए थे आईपीएस होके। उनका नाम सुना था मैंने कि वो आईपीएस हुए थे, शुक्ला जी। बाय द वे वो मेरे बॉस हो गए कानपुर में। तो जब मैं गया तो मैंने परिचय दिया, मैंने कहा सर अजीतमल डिग्री कॉलेज में मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर रहा हूँ, आप वहाँ फिजिक्स के थे। उसके ठीक बाद में आया, बहुत अच्छी बात, बहुत। अब दिवाली हुई तो लोग गए, उनके पैरों पर गिर पड़े जाके सीधे सीधे, पैर पकड़ना। मैंने तो पैर नहीं छुए भाई, ठीक है छोटे भाई बड़े भाई का नाता हो सकता है, बॉस सबॉर्डिनेट का पैर छूना कौन सा नाता है। तो बड़ी टेढ़ी निगाह से उन्होंने मुझे देखा। इसके अगले ही दिन आके उन्होंने जो है वो चेक पोस्ट पर रेड कर दी और सबकी जेबों की तलाशियां ली, उसको कुछ नहीं मिला। जब कुछ होना है तो हमारे में तो ये सब मिलना नहीं था। कहने लगे तुम कैसे मैनेज करते हो, तुम लोगों पॉकेट खाली। मैंने कहा सर वही गाड़ी में डीजल पेट्रोल भराने के पैसे हैं, मैं कार से आता हूँ, मेरी अपनी कार है, डिपार्टमेंट को सूचित है, परमिशन लेके खरीदी गई है, तो पेट्रोल भर के पैसे रखता हूँ और थोड़ा बहुत खाने पीने के रखता हूँ, बाकी तो ज़रूरत क्या है। बोले नहीं तुम लोग कमाते नहीं हो चेक पोस्ट से। मैंने कहा सर चेक पोस्ट कोई कमाने की चीज़ थोड़ी है, शाम तक इतना पैसा इकट्ठा कर, लाख रुपया रोज़ इकट्ठा करके डिपार्टमेंट को देता हूँ, 1.5 करोड़ रुपया साल भर में इकट्ठा किया है पिछले साल, ऐसे थोड़ी हो जाता है। किसी अधिकारी ने किया हो तो बताइए। बोले हाँ ये तो बात सही है, लोग 20, 25, 30 लाख रुपया साल भर में जमा करते हैं, तुमने 1.5 करोड़ कर दिया, 1 करोड़ कर दिया किसी साल में, किसी साल 1.5 करोड़ कर दिया। तो मैंने कहा सर ये तभी होता है जब हम ऊपरी कमाई नहीं करते, करेंगे तो फिर वो कैसे होगा। समझ गए वो भी। आपका बॉस आपको जिस दिन समझ जाएगा कि आप ईमानदार अधिकारी हैं, आपको तंग नहीं करेगा। अब इस वीडियो में दूसरा पार्ट भी बता दूं, अगर आप बेईमान अधिकारी हैं तो नौकरी और भी आसान है। ये साथ दे वो साथ ले, नहीं ये साथ ले वो साथ दे, लोगे नहीं तो दोगे कहाँ से। कभी कभी पहले देना भी पड़ता बाद में, यही दुनिया कर रही है, तुम भी करो। फंस जाओ तो मुझसे मत कहना, डिस्क्लेमर ये, फंस गए तो 7 पीढ़ियाँ तर जाएंगी। मैं सजेस्ट नहीं करता है घूसखोरी करिए, लेकिन अगर आप करने के इरादे से जा रहे हैं तो सर्वाइव कर जाएंगे। बहुत लोग कर रहे हैं, जेल वेल जाना होता है तो चले जाते हैं, लौट आते हैं, नौकरी वोकरी चली जाती है तो दुकान खोल लेते हैं, या इतना पैसा कमा लिया होता है फैक्ट्री वैक्ट्री चला रहे हैं। फिलहाल ना घूसखोरों को कोई प्रॉब्लम है, ना ईमानदारों को कोई प्रॉब्लम है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने तो इसलिए छोड़ दिया, टीचिंग का कीड़ा काटता है बहुत ज़्यादा, बिना टीचिंग किए रह नहीं सकता। तब भी टीचिंग करता था, जब नौकरी करता था थोड़ी बहुत करता रहता था फ्री, बाद में इसको व्यवसाय बना लिया, आय का साधन बना लिया, और सरकारी नौकरी की तनख्वाह से ज़्यादा ही कमा लिया। हर महीने का आय सरकारी नौकरी की सैलरी से ज़्यादा ही होती रही, चाहे जितना कम एडमिशन हुए कुछ भी हुआ, लेकिन सरकारी नौकरी में जो तनख्वाह मिलती थी उससे तो ज़्यादा ही कमा लिया, उससे ज़्यादा सुखी रह लिया, उससे ज़्यादा ठीक से रह लिया। छोड़ दिया था इसलिए कि मेहनत बहुत करनी पड़ रही थी और शरीर में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, किसी अकर्मण्यता के कारण या किसी असफलता के कारण या किसी समस्या के कारण नहीं छोड़ा। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, 15 साल तक मुकदमे चलते रहे। बीच बीच में कोर्ट ऑर्डर करता था ज्वाइन करिए, ज्वाइन कर लेता था, फिर रिज़ाइन करके आ जाता था, फिर ज्वाइन कर लेता था, फिर रिज़ाइन करके आ गया। ये सब चलता रहा। रेजिग्नेशन इज़ डिफ़िकल्ट, सर्विस करना आसान है, रेजिग्नेशन आसान नहीं है। आप रिज़ाइन करते हैं तो रेजिग्नेशन जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता है, बड़ी जांचें होती हैं। तो ये शंका कई लोगों को होती है, मैंने आज समाधान कर दी। गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़िए, और थोड़ी थोड़ी फीस बढ़ गई है, जानकारी कर लीजिए, व्हाट्सएप लिखा हुआ है। फीस बढ़ी है तो कंटेंट भी कुछ ना कुछ बढ़ाया गया है, बिना कंटेंट बढ़ाए मैं कभी फीस नहीं बढ़ाता, और ये 2-2.5 साल बाद बढ़ी है, और वो भी बढ़ने पर पर्सनैलिटी बैच शामिल कर दिया गया, बस इतना है। एक तरह से कहिए कि गोल्ड बैच में पर्सनैलिटी बैच जोड़ दिया तो वो गोल्ड प्लस कहलाने लगा, प्लेटिनम में पर्सनैलिटी बैच जुड़ गया नेचुरली तो प्लेटिनम प्लस कहलाने लगा, और पर्सनैलिटी बैच की फ़ीस के बराबर ही फ़ीस लगभग बढ़ गई, बस इतना है। यानी कंपलसरीली आपको पर्सनैलिटी बैच लेना है।
जिन्होंने पर्सनैलिटी बैच पहले से ले रखा है उन्हें उतना लेस कर दिया जाएगा जो उन्होंने पे किया है। सिंपल है, तो नहीं बढ़ी एक तरह से। फाउंडेशन बैच में भी पर्सनैलिटी जोड़ दिया गया, इसका नाम फाउंडेशन प्लस हो गया। 31,000 से 37,000 हुई, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा। 5100 का बैच पर्सनैलिटी का था, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा। और फिर अगर आपने ये भी है कि पर्सनैलिटी बैच ले रखा है तो आपको फीस लेस हो जाएगी। ऐसे करके कुछ अमाउंट बढ़ाया गया, बहुत नॉमिनल सा, बल्कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच को कंपल्सरीली शामिल किया है क्योंकि इसके बिना अधूरा है मामला। तो अगर आप अभी पर्सनैलिटी बैच ज्वाइन करते हैं 11,000 का, तो ये पैसे आपके लेस हो जाएंगे। गोल्ड बैच में या प्लेटिनम बैच में जब आप ज्वाइन करेंगे, नहीं करेंगे तो ये 11,000 के वर्थ तो है ही बैच, इतना तो आपको दे ही देता है कि 11,000 फीस वसूल हो जाती है। थैंक यू।